request the Honorable Leader of the House. اور دوسری طرف یہ نظر آ رہا دو دوستوں کے درمیان میں نہیں آنا چاہتی جی اور دوسری طرف یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جناب چیئرمین کہ حکومت کی شاہ خرچیاں اور جس کو کہا جائے کہ جو ایلیٹ ہے اس میں بھی اب کلاسز پیدا ہو گئی ہیں. There is an elite, there is a ruling elite, and there is an elite of the elite, یعنی کریم دی کریم. اور ان کی تنخواہیں اور ان کے مرات اس حساب سے بڑھائے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی حساب ہے ہی نہیں جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو اگر میں آپ کو اس بات کی توجہ اس طرف دلواؤں کہ پاکستان کا ایک عام کامن ورکر، اس کی بیسک سیلری جو ہے اور اس کے کمپیرزن میں ہم اگر دیکھیں اس کی بیسک سیلری جو ہے وہ 32,000 روپے ہے، جس میں وہ اپنے 2 وقت کی روٹی بھی پوری کرنے میں ناکام ہے جناب چیئرمین. اور یہ 32,000 روپے جو ایلیٹ کی کلاس لنکیج ہے اور جو ایلیٹ کے کلاس سپورٹرز ہیں، یعنی پاکستان کا سرمایہ دار، وہ سرمایہ دار یہ 32,000 روپے بھی عام ورکنگ مزدور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے جناب چیئرمین. لہذا this minimum salary is only on the statutes and is not practically implemented. پھر جناب چیئرمین اگر ہم ایوریج اور اوسط پہ جائیں تو بی پی ایس 1 to بی پی ایس 15 کی ایوریج، اور اب آپ جناب چیئرمین صرف فگرز کو دیکھتے جائیے، بی پی ایس 1 to بی پی ایس 5 کی ایوریج سیلری جو ہے وہ 14,390 روپے ہے. 14,000 rupees, Mr. Chairman, in today's world. The initial basic salary for BPS 5 to 15 is rupees 22,840. 22,840. The basic pay جس کے اوپر بہت چرچا ہوتا ہے، جس پہ اگر ایک ٹیڈی پائی بڑھا بھی دی جائے تو وہ شور مچ جاتا ہے. The basic pay of a senator and of an MNA is 1,50,000 rupees. یہ تو پاکستان کے عام شہریوں کی صورتحال ہے جناب چیئرمین. لیکن ابھی فائنانس منسٹری نے جو کیا ہے، جس میں MP1, MP2 اور MP3 کی تنخواہیں بڑھائی گئیں، نہ صرف ان کی تنخواہیں بڑھائی گئیں بلکہ ان کے ہاؤس رینٹ اور یوٹیلیٹی بلز بھی بڑھا دیے گئے. جناب چیئرمین اب آپ دیکھیے and you will be shocked. I was shocked, Mr. Chairman. اور خاص طور پہ جب میں جکسٹا پوزیشن میں جو آپ کو میں پہلی سیلریز دیتا آیا ہوں کہ بی پی ایس 1 to بی پی ایس 15 14,000 روپے منتھلی وہ ٹیک ہوم کرتے ہیں ایٹ این ایوریج. اب لک ایٹ ان جکسٹا پوزیشن جناب چیئرمین، MP1 scale begins from 5,54,600. That is the basic salary. The house rent and utilities, and with a terminal amount of 6,99,250 per month.
This would now go up, ये पहले था, अब ये होगी 8 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए पर मंथ जनाब चेयरमैन। कहां 14,000 रुपए, कहां 8 लाख से लेके 10 लाख रुपए जो है वो बेसिक सैलरी है। और इसके अलावा जनाब चेयरमैन, the officers in this grade would also be drawing 95,910 per month for transport monetization allowance, taking the revised monthly package to 9 lakhs, between 9 lakhs to 11 lakhs of rupees. ये MP1 है जनाब चेयरमैन, 9 लाख से 11 लाख तक का मंथली टेक होम उनका बन रहा है। MP2 जनाब चेयरमैन, इनकी सैलरी जो थी वो 2,55,000 रुपए थी और इसकी हायर साइड जो थी वो 4,13,000 रुपए थी। और ये अब रेंज करेगी 3,70,000 to 5,99,000 यानी ऑलमोस्ट 6 lakhs। और इनका भी मंथली मॉनिटेशन अलाउंस जो है वो 77 lakhs ऑफ रुपीज है जनाब चेयरमैन, 1,000। MP3 जो है जनाब चेयरमैन, अब ये तो फिगर मेरा ख्याल है मुझे डार साहब से पढ़वाना पड़ेगा, ये 16,58,000 और ये दिस वुड गो अप टू 23,37,000 पर मंथ। और ये रिवाइज हुआ है जनाब चेयरमैन, और रिवीजन के बाद ये 24 lakhs to 33 lakhs। कहां 14,000 रुपए, एक ग्रेड 1 का 15 से 14,000 रुपए ले रहा है, और कहां पे एलीट ऑफ द एलीट, क्रीम ऑफ द क्रीम, वो ले रही है 24 लाख से लेके 38 lakhs तक, 33 lakhs तक जनाब चेयरमैन। अगर ये डिस्पैरिटी नहीं है जनाब चेयरमैन तो और क्या है। और अभी आपके क्वेश्चन आंसर के, और इसमें अगर आप देखा जाए जनाब चेयरमैन तो जो क्वेश्चन आंसर अभी हुआ उसमें जो टोटल बजट इन्होंने दिखाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फॉर द ईयर 2022-23, दैट इज ऑलमोस्ट 7 अरब रुपए। और जो सैलरीज इन्होंने एनेक्चर बी के अंदर दी हैं वो 16 lakhs या जो मिनिमम है, और 39 lakhs मैक्सिमम है। ये मैं आपको सिर्फ एक ग्रेड की बता रहा हूं, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द सेनेट इन टर्म्स ऑफ सैलरीज ऑफ द सेनेटर्स इज ओनली रुपीज 145 million। और कहा जाता है कि जी सेनेट जो है या पार्लियामेंट जो है वो सारा पैसा खा गई है। लुक एट दिस, पैसा पार्लियामेंट ने खाया है या पैसा पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी खा रही है जनाब चेयरमैन? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन कि 33 lakhs की पेज जो है वो इनको दी जाए? और फिर जनाब चेयरमैन दे हैव द ऑडेसिटी टू से, और इसके साथ जनाब चेयरमैन दे हैव द ऑडेसिटी टू से कि जनाब ये सारा कुछ NFC की वजह से हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। आप 24 लाख रुपए से लेके 33 लाख रुपए तक एक आदमी की सैलरी देंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? कहते हैं सूबे पैसे ले गए, फेडरल गवर्नमेंट पैसे खा गई जनाब चेयरमैन। और फिर कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन की अगर बात है जनाब चेयरमैन
तो जो फेडरल बजट है उससे 20 या 20 से थोड़ा सा कम हिस्सा जो है परसेंट वो डिफेंस में जाता है जनाब चेयरमैन। 200 अरब रुपया जो डिवॉल्व्ड 18वीं तरमीम के तहत जो मिनिस्ट्रियां डिवॉल्व हुई उन पे इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है 200 अरब रुपया। ये सारा पैसा वफाक यूजअप कर रहा है सूबों का, और ये कहते हैं कि रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, लेकिन दैट रीएलोकेशन शुड बी इन द फेडरल गवर्नमेंट एंड नॉट इन द प्रोविंसेस। जनाब चेयरमैन, ये यहां पे कहानी खत्म नहीं होती। मेरा एक और कॉलिंग अटेंशन नोटिस पड़ा हुआ है, उसमें मोर देन 164 सिविल एंड मिलिट्री रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं who are getting pension abroad. Yani, this is a country which is starving for dollars. This is a country which is starving for foreign exchange. और यहां पे अयाशी फेडरल गवर्नमेंट की खत्म नहीं होती, और वो 164 एंड अबव लोग जो है वो पेंशन अब्रॉड बैठे हुए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ले रहे हैं। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस? और फिर कहा जाता है जनाब चेयरमैन कि 18वीं तरमीम तमाम पैसे खा गई, सूबे तमाम पैसे खा गए, एनएफसी तमाम पैसे खा गई। 10 साल से ऊपर गुजर चुके हैं जनाब चेयरमैन। जब लास्ट एनएफसी हुआ था डार साहब ने किया था, उसके बाद देयर इज नो एनएफसी, और आइन का तकाजा है कि हर 5 साल के बाद एक नया एनएफसी होगा। 18वीं तरमीम में यह बात आई है कि पुराना एनएफसी जो है वो नए एनएफसी से कम नहीं होगा। और अगर आखिर में मैं यह बात कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन जी, कि अगर वफाक ने अपनी शाह खर्चियां कंट्रोल नहीं की, इस तरीके से सिविल ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों को कंट्रोल नहीं किया, और यह बात चलती रही कि रिसोर्स रीएलोकेशन होनी चाहिए, तो फिर इस फ्लोर से आज मैं ये बात कह रहा हूं, और ये फिर चारों सूबों से और बिलखुसूस तीनों छोटे सूबों से ये बात उठेगी कि पाकिस्तान जनाब चेयरमैन एक पार्टिसिपेटरी फेडरेशन है, और एक पार्टिसिपेटरी फेडरेशन में फिर सूबे ये बात डिमांड करेंगे कि सारे का सारा टैक्स सूबे कलेक्ट करेंगे, और वफाक अपना बिल सूबों को देगी, और सूबे उस बिल को चेक करके जहां देना होगा पैसा वफाक को वहां हम देंगे। अगर आप रिसोर्स रीएलोकेशन की बात करते हैं तो देन वी विल गो टू दिस एक्सटेंट। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।